Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Today we'll do some extra questions, some different questions other than your NCERT or other than your curriculums, but they are in your syllabus. Just like find the LCM of the fractional portions. अगर आपको fractional portion दे दिया है तो उनका LCM आप कैसे निकालेंगे? Let us take an example of 3/7 and दूसरा नंबर आप ले लीजिए 12/9, 12/19 और एक ले लीजिए 16/70। कोई भी नंबर ले लीजिए आप फ्रैक्शनल में और उस फ्रैक्शनल में नंबर के आप एलसीएम निकालने की कोशिश कीजिए। सो हाउ टू टेक द एलसीएम? इनका एलसीएम कैसे होगा? इनका एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स 3, 12 and 16 and divided by HCF of डिनोमिनेटर्स। ये लॉजिक हम यहां लगाएंगे। क्लियर? सो इनका एलसीएम कितना होगा? 3, 12 and 16 का एलसीएम 4 4 is 16, 4 3 16 3 is 48 and their HCF is nothing is common, 7 के फैक्टर 7 into 1 19 के भी 19 into 1 मिलता है और 17 के फैक्टर भी 17 into 1, तो nothing is common, only one is the HCF. Clear? So answer is 48. Now come to the next question. Find the HCF of the same number. How to find? अगर इसका HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? In the case of HCF, what we do? We do HCF of the numerators and LCM of denominators. Now, how to find the value? HCF of 3 के फैक्टर क्या है? 3 into 1, 12 के फैक्टर्स 3 into 4 and 16 के फैक्टर्स 4 into 4 या 2 into 2 into 2 into 2. So what is the common? Nothing else. अगर कुछ भी common नहीं है तो हमारा HCF कितना आएगा? 1. What is the LCM? 7, 19 और 17. अब तीनों आपस में क्या है? प्राइम नंबर्स हैं तीनों. All are the co-prime to each others. तो रिजल्ट क्या होगा? हमेशा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो व्हाट वी गेट 2261 is the answer. Okay, clear? Now come to the next type of the questions are LCM of 4.8, 6.4, 1.92. अब एक डेसिमल पोर्शन दे दिया जाए तो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? इसके केस में हम क्या करेंगे? We take the LCM of the complete numbers 48, 64, 192 and divided it by what is the maximum number of the digits after a decimal points in any number is 2, 1, 2. डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? इसमें एक, इसमें एक, इसमें दो, तो जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं उसके हिसाब से हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो बाय 100. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस? 48, 64, 192. अब आप इनका एलसीएम निकालिए 2 से, फिर 2 से, अगेन फिर 2 से गए, अगेन 2 से, अगेन 2 से, अगेन 2 से, नाउ 3 से. So what is the multiplication? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 96, 96, 3 to 192, 96 to the 192.
और एक बार आप देख लीजिए, जो भी आएगा इसका 192 आएगा डिवाइडेड बाय 100. So now we go for the next type of the questions. So before starting the questions, let us erase these things. Now if we have find the LCM, now if we have to find the HCF of the same number 4.8, 6.4, 1.92, how to find it? How to find the HCF of the same numbers? So method is the same. You can also now try by yourself. You know it very well. Now you can try by yourself. Okay. Now another method is the product of the two number. Let दो नंबर हमारे पास है A और B. इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना आएगा? LCM of A and B multiply by HCF of A, B. इन दोनों नंबरों का जो LCM है और जो HCF है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा. इन दोनों नंबरों का जो LCM है और जो HCF है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट ही आएगा. क्लियर? लेट अस टेक एन एग्जांपल. Let LCM of two numbers A and B. LCM of A and B. क्या है इनका LCM? LCM हमारे पास गिवन है 112 और HCF कितना गिवन है of A, B का is 2. If A is equal to 14, find B. तो आप B क्या होगा, B की वैल्यू बताइए. सो मेथड हम ये वाला इंप्लीमेंट, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर. लेट अस चेक. एल्स A, फर्स्ट नंबर इज A की जगह हम लिख देते हैं 14 into B is equal to LCM of A and B is 112 multiplied by 2. So what is the value of B? 112 multiplied by B divided by 14. 14 ones are 14, 14 8s are 112, 18 2s are 8 2s are 16. So next number या जो second number है वो हमारा क्या होगा? B होगा. Now similarly you can solve for the different questions. Let हमारे पास एक और क्वेश्चन है. अज्यूम कीजिए कि आपका LCM ऑफ दो नंबर गिवन है A is equal to 64 and B is equal to 48. ठीक है. And the LCM of A and B is equal to 192. What is HCF? What is HCF? इसका HCF कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है LCM into HCF is equal to A क्रॉस B. LCM की वैल्यू है 192, HCF की वैल्यू है हमें फाइंड करनी है. A की वैल्यू है 64, B की वैल्यू है 48. So what is the value of the HCF? 64 48 divided by 192. तो ये कैंसिल हो रहा है. कितने से कैंसिल हो गया? 4 जा पे कैंसिल हो गया. 4 1 जा 4, 4 16 4 जा. So answer will be 16. So these are different type of questions. और ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो हम करते रहेंगे, चेक करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये तो था LCM HCF में, इसमें भी बहुत टाइप है हमारे पास. बाकी सिंपली हम एक एडिशन का क्वेश्चन भी करते हैं. लेट अस डू सम एडिशन क्वेश्चंस यूजिंग सम different method. Look at this question. Just we have to add these. We have to just simplify this equation, this question. How to simplify? If you are going to solve these portions, अगर हम इन्हें solve करके फिर इसे solve करेंगे, इन्हें अगर हम solve करके solve करने जाएंगे, simplify करेंगे, तो take a lot of time. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा.
सो अनदर मेथड क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है 1:1/2, हम इसे बोलते हैं 1.5 प्लस 2:1/2, इसे बोलते हैं 2.5। इनका टोटल करते हैं तो हम डायरेक्टली कितना बोल सकते हैं 4, 1.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 4, 1.5 plus 2.5 is equal to 4. Now, how can we solve it? 1 plus 2, 3, half and half, 4. So, इसे solve करने के लिए हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 plus half, 2 plus half is equal to 4. Look at this, 1 plus 2, 3, half and half, 1, complete 1 and that becomes to 4. तो इसे solve करने के लिए हम क्या करेंगे कि नंबर वाले जो पोर्शन है उन्हें एक साथ ले लो और फ्रैक्शनल जो पोर्शन है उन्हें एक साथ ले लीजिए। सो दिस बिकम 3, दिस बिकम 1, सो 1 plus 3, 4. सो सिमिलर ऐसा ही मेथड हम यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। सो हाउ टू सॉल्व दिस पोर्शन, लेट्स चेक। We introduce plus sign here, 2164 plus 171263 plus 1732 plus 43/263 plus 880 plus 49/263। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने क्या किया यहाँ पर, बस इन सभी जगह पर प्लस का साइन इंट्रोड्यूस कर दिया, इतना ही किया है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन कंप्लीट नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, सिंपली इजी। 2164 प्लस 1732 प्लस 880, हम इसको ऐड करके देखते हैं कितना आया। 4 into 6, 6 and 9, 6 and 3, 9 and 8, carry 1, 7 1 8, 16 and 1 17, one more carry, so their sum is equal to 4776। 477, ये जो नंबर है कंप्लीट नंबर्स है, इनके सम कितना हमारे पास 4776। now come to the fractional portion, 171/263। अब इनका एलसीएम कितना है सबका, इनका एलसीएम सेम आएगा 263। अब 263 में इनकी वैल्यूज कितनी हो गई 49। अब इनका सम कितना है हमारे पास, इन सभी नंबरों का सम है हमारे पास 4776। क्लियर। सो नाउ 4776 प्लस इनको ऐड करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू 92 93, तो 263/263। सो इनकी वैल्यू कैंसिल होने के बाद कितना होगा 1। सो आंसर हमारे पास अब कितना आ गया +1। 4776 की जगह अब हमारे पास हो गया 7। सो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब इसमें इतना मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं रहेगा, इट रिड्यूसेस योर एफर्ट्स और ये इजीली सोल्व हो जाएगा आंसर। आप इसे भाई एडिशन का पोर्शन जो भी है वो आप बिना पेन पेपर भी कर सकते हैं, इनका एलसीएम भी सेम है तो इसे भी आप बिना पेन पेपर एलसीएम ले सकते हैं, फिर इनका भी एडिशन आप इजीली कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो द अनदर मेथड। ओके, डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। ओके।